Okay. So in last class, we have seen if we have given a diode, Zener diode regulating circuit. Okay. Say I'm applying a V source. This is my series resistance. Okay. And here we have RL. Okay. So this is grounded. This is also grounded. Okay. So we know that if I want to calculate current in this circuit, okay, so this current in the circuit can be given assuming if diode is on. Okay, if diode is operating, okay, in breakdown condition, that means it is on and I can replace it by a battery. Okay, in that case I know if I want I can calculate I using Vs minus Vz upon Rs. Okay, similarly we know that this I will divide here it will go IL, and here inside the diode will go IZ. Okay, so similarly if I want my VL in when diode is operating in breakdown condition, then my VL here, V load will be equal to Vz. Okay, and if I want my load current I, that will be VL upon IL, and if I want to calculate my Zener current, okay, that I can calculate I minus IL. Okay, so I can calculate all the parameters. Now question is, see, if I now suppose I have this R value fixed. Okay, that means my current is coming, which is fixed. Okay, now I'm changing this RL. Okay, so RL value I can go from minimum to maximum. We have seen yesterday, if RL go beyond less than minimum, okay, then this diode is not in operating condition. Okay, that means this RL values go from RL minimum to RL max. Okay. Okay, if it is RL minimum, okay, in that case the current which flowing in this load, that is max. Okay, so I current is coming. Okay, so if it is max, this will be minimum, IZ will be minimum. Okay, so here IL is max. Okay, and here IL is minimum. Okay, now suppose I reduce this IL less than RL minimum. Okay, then what will happen? No current will flow in the diode, and diode will not act as will not be in operating condition, because in order to make it is in breakdown region, some current should flow. If no current is flowing, that means here, okay, that will not be in breakdown conditions. Okay, similarly, so there should be maximum current which can flow, that is IL max. Okay, now similarly, if this voltage is less than what is required to make it open. Okay, there's some voltage required to make it open, that is called open voltage circuits. If Vi is less than that one, then also this diode is not in operating conditions. Okay, that we have seen yesterday. Now suppose I'm applying here, I'm giving some range V max to V minimum. I'm applying. Okay, so suppose I'm now applying V minimum. Okay, V minimum. So V minimum will give some current. Okay, which will make this diode in breakdown region. That means conducting. Okay, now here R is also fixed. Once you fix this VL, okay, this voltage is fixed, this voltage is fixed. Okay, so if I want some current to flow here, then this RL value will limit this current. Okay, suppose I'm applying V minimum, then some current is going here, and that is making it breakdown region. Okay, for given some RS. Okay, now if you increase that RS, so what will happen? Your current will reduce. So current will reduce means that again this diode will not be, because here is fixed VL. Now applying here V minimum and IL maximum. I have given range V max, V minimum, IL minimum, IL max. So here IL max, that means here minimum current is flowing. Okay. Now further if I increase the resistance, this current will decrease.
So what will happen? Again, this diode will not act as a conducting state. Okay, so that is called सर bus. हाँ हेलो सर। जी, सर ये जो अभी बताया ना उसमें आयल हम मैक्सिमम कर रहे हैं, मतलब जो आईजेड है वो मिनिमम होगा ना, ये भी पहली कंडीशन हमने भी अप्लाई की है भी ना। आपने ऐसा देखो, ये IL मैक्स है, तो यहाँ पे क्या है, आईजेड मिनिमम है, ठीक है। यस। तो आईजेड मिनिमम प्लस IL मैक्स, दिस इज इक्वल टू I, okay, and you get some value RS, okay, for this given condition. V minimum अप्लाई कर रहे हो, ये कंडीशन के लिए तुमको कुछ करंट मिल रहा है, ओके। पहले तो V मिनिमम आपके ओपन से ज्यादा होना चाहिए, ओपन से ज्यादा हो गया, देन it will be conducting state, you are getting some current, and that is that is RS fixed, okay. Now suppose this R, यस। now suppose this RS also you increase, okay, some value, then this I will reduce, then IZ minimum plus IL max reduce. That means now here IL max came, so here IZ minimum will also not go, okay. तो कहने का मतलब है ये V, this is V minimum, okay. So this is called a worst condition, okay. Worst conditions, okay. So now I have to design a circuit, okay, which can work in worst conditions. Worst condition का मतलब क्या है, यहाँ पे I minimum हो जाए, V minimum हो जाए, BL max, V minimum के लिए काम कर रहा है तो BL max के लिए काम करेगा, ओके, और यहाँ पे IZ max के लिए भी काम करे, यहाँ पे रेंज दे रखी है, उस रेंज के लिए भी काम करे, इस रेंज के लिए भी काम करे, और मिनिमम वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप होगा दैट इज शुड बी VZ, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट कंडीशंस, ओके। तो मुझे सर्किट को वर्स्ट कंडीशन के लिए डिजाइन करना है। आई हैव गिवन वन जीना डायोड which have some voltage VZ, okay. Now I'm giving you range of voltage and range of either loads or either currents, okay. So I'm telling you find the RS, okay, so that my diode should be in conducting state, okay. तो इसका मतलब क्या है, just give me 1 minute, my duster. So now just give me 1 minute. So worst operating condition means what? Okay, worst operating condition means what? I'm taking out of this V max, so V minimum, I'm taking V minimum, okay, ठीक है। और यहाँ पर I have given IL max, okay, and IL minimum. So I am taking worst condition IL max, okay, and diode voltage I'm taking VZ. In that condition, what will be my V open? V open equal to VZ, okay. इसका फॉर्मूला क्या है? RL अपॉन R प्लस RL, ओके। सो RL क्या है, आपकी मिनिमम लेना है क्योंकि मुझे IL मैक्स लेना है। RL मिनिमम अपॉन RS RS प्लस RL, RL मिनिमम, ओके, इनटू व्हाट? V मिनिमम, V मिनिमम, दैट इज माय वर्स्ट कंडीशन। और इस केस में जो RS निकलेगा दैट विल बी RS मैक्स, ओके, क्योंकि मैं मिनिमम करंट ले रहा हूँ, वी मिनिमम है, अगर इसको कम करूंगा तो वैसे करंट बढ़ जाएगा, ओके। सो इन दैट कंडीशन व्हाट R will come, that will come RS, ओके। सो इससे मैं I can find what is the RS max formula, okay. So RS max formula will come now if we solve this one, that will come, this is V source minimum, okay. So V source minimum, okay, minus VZ upon VZ into RL minimum, okay. You can solve this one, RL minimum, okay. You can solve this one and you can find this RS max value, and similarly you can write RS max in terms of current. So current means VS minimum minus VZ upon VZ. Now RL minimum is what? VL upon IL max, IL max, okay. तो VZ, sorry, VGL equal to VZ, तो VZ cancel हो गया, okay. So this is my formula, VS minimum minus VZ upon IL max, okay. So ये फॉर्मूला तब कब यूज करना है जब आपको यहाँ पे रेंजेस दे रखी है, V max to V minimum और VL to
IL2 I max और RL minimum to RL max. ओके, सो इस कंडीशन में बोल देगा कि आप सर्किट डिजाइन करो ताकि ये हमेशा ऑपरेटिंग कंडीशन में रहे. तो ये तभी ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा जब हम वर्स्ट कंडीशन डिफाइन करें. और अगर वर्स्ट कंडीशन में काम कर रहा है ये, दैट मींस इट विल वर्क इन ऑल द कंडीशंस. ओके, सो इसी पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है. ये मिटा दूं, ये फॉर्मूला लिख लो. यस सर. So when a question came in your exam, IIT JAM, okay, IIT JAM, uh, 2015, yes, okay. So a circuit is given, okay, which varies from 15 volts to 20 volts, okay, and one RS values give RS, okay, and here we have a diode which is 6.8 volts, okay, and this is, they say IL current is varying from 5 milliampere to 20 milliampere, okay, that is IL minimum, okay, to IL max, okay. So asking what should be the value of RS, okay, what should be the value of RS. अब यहाँ पे RS की कोई एक वैल्यू तो हो नहीं सकती है, ओके, कोई इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी पड़ेगी. तो उसकी 41 ओम. हेलो 41 ओम. 41 नहीं, Yes, sir. वापस चेक करो एक बार. ओके, फॉर्मूला क्या है? RS max, ओके, VS minimum, ओके, VZ, ओके, then IZ max. So VS minimum कितना है? IL max. IL max, okay, sorry, IL max. So 15, okay, VZ is 6.8 and this is your 20, okay. So if you solve this one, this will give you 8.2 upon 20 milliampere, okay, this is a milliampere solve. So this will give you 410 ohm. 410 ohm. That means your RS max should be less than R max, okay, or equal to also, okay. That means your value should be less than or equal to 410. So they have given options, okay. One option is 390, okay, other is 420, 440, and some more than this one, okay, 600 something they given. So option A, B, C, D, okay. Current milliampere में दिया है. हाँ. So this is 20 milliampere, okay. That means now my option should be 390 because 390 is less than 410. बाकी सभी 410 से ज्यादा है. तो डिजाइनिंग ऐसे क्या है प्रॉब्लम, ओके. सो ये क्वेश्चन कई कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है. इनकम्प्लीट नहीं है, आंसर दे रखा 390, तो इससे RS शुड बी लेस देन 410, ओके. सो ये ऑप्शन देखिए पता चलता है. देखो 410 से किया, 420, 440, डिजाइन ऐसा किया क्वेश्चन, तो लेस देन 390 इज योर आंसर. तो दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस कंडीशन, ओके. तो इसी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग. ये क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर. Now question is, a linear regulator has an input voltage that may vary from 20 to 30 volts, okay. So VS आपका और V input भी बोल सकते हो, it's varying from 22 to 30 volts, okay. And VZ is given your 12 volts, okay, and the load resistance RL that varies from 140 ohm to 10 kilo ohm, okay. So he asking what is the value of this is your RS
Okay, this is diode. This is your V source, which is varying, and this is your RL, okay, which is also varying. Okay, V source also your is also varying, V source. Okay, so now find the value of RS. Okay, RS की वैल्यू क्या आनी चाहिए? RS should be less than R max. तो R max कैसे निकलेगा? वही फॉर्मूला अपना VS मिनिमम माइनस V। 140 तो ओम में ही है ना इस बार? हाँ सही है, ओम में ही है ना? 1 ओम में 1 किलो ओम में। हाँ, 1 ओम में 1 किलो ओम में। ओके, VZ okay is 12 volts given, so VZ into RL minimum 93.3। ओके, नहीं चेक करो एक बार, मेरा 93 तो नहीं आ रहा, 140 दे रखा है ना, ठीक है। सो ये कितना है? मिनिमम 22, 12, 22, RL मिनिमम कितना दे रखा है? 140। ओके, सो 20 minus 10 upon 22, 140। ओके, सो 5, 11। ओके, तो कितना आएगा? कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेट करके? आंसर आना चाहिए अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 117 ओम। आ रहा है क्या? ये तो VZ की 63.63 वैल्यू आ रहा है। 12 वोल्ट दी है। सर 116.6 that is 6.6। 116.6। अच्छा ठीक है, तो 117 के आसपास ही आ रहा है ना? ठीक है, तो 116.6 आ रहा है, तो हमारा जो RS है वो इससे 116.6 से कम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन। सर हाँ सर वो फॉर्मूले में जो आपने वैल्यू दी है सर, वो एक मिनट वर्स्ट केस कंडीशन के लिए 22 से लिया है, 22 माइनस 12 अपॉन आपने 22 लिखा है ना? 22 लिखा है हाँ ना? 12 आएगा ना सर नीचे डिनोमिनेटर में? हाँ, और उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, अब करके देखो उसको, तो मेरा गलत हो गया ना इसका मतलब, 10/12। ओके, वही करके सर 116 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अब कैलकुलेट करके देख लो, 116 आ रहा है ना, यही से आ रहा है ना 116? ठीक है, यस सर। ठीक, चलो। सर एक अब ये तो हो गया कि हमारा वर्स्ट केस RS मैक्सिमम। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन करते हैं जब हम जहां हमको RS मिनिमम मिलेगा। ओके, इसको मिटा दूं? हाँ सर। Now we have a question. Okay, we have given one resistance RS. Okay, and we have one Zener diode. Okay, then we have one more Zener diode. Now V input is 40 volts. Okay, and VZ is given 12 volts, 12 volts, 12 volts. Okay, and then it is given that the power of these Zener diodes are 12 watts. Okay, 12 volts, 12 volts already given, and 100, this is I max, 100 milliampere is given. Okay, 100 milliampere, and there is a open load, there is no load, then load में करंट जा ही नहीं रहा है, और ये जो है आपका IZ, ये क्या है? IZ max है, IZ max। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर फाइंड आउट क्या करना है? RS मिनिमम। हाँ, RS ऑब्वियसली, अभी देखो ये जो भी करंट आ रहा है यहाँ से वो सारा यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो 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 करंट निकलेगा वो क्या होगा? ये मैक्स करंट जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें मिनिमम करंट भी भेज सकते हो, क्योंकि अभी मिनिमम की वैल्यू दे रखा है, अभी ये मैक्स की वैल्यू दे रखा है,
मैक्स की वैल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है क्या मिनिमम है। अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो करंट चेंज होगा, इससे कम जाएगा। भी इसमें करंट जा सकता है आई मिनिमम टू आई मैक्स, आई जेड मिनिमम टू आई जेड मैक्स जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ लोड तो है नहीं है, तो ये करंट चेंज कैसे होगा, इस आर एस से चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आर एस मिनिमम होगा तो करंट मैक्स होगा, और आर एस मैक्स होगा तो करंट मिनिमम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में खाली तो मैक्स दे रखा है, अगर इसकी जगह आई आई मिनिमम भी दे सकते हैं, देन यू कैन फाइंड द रेंज। ओके, तो इससे 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 ज्यादा आर मिनिमम से ज्यादा और आर एस मैक्सिमम से कम। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में मैक्स दे रखा है, अगर ये आईजेड मैक्स दे रखा है, मतलब आरएस मिनिमम होगा ना हाँ सर। हाँ हाँ वही तो, अगर आई जेड मिनिमम दे रखा होता तो यहाँ पे आर एस मैक्स होता। आरएस मैक्स। तो क्वेश्चन में इसमें ये दे रखा मतलब है। कैलकुलेशन करके हमें कंसीडर हाँ करना पड़ेगा ना ऐसा। हाँ, अब निकाल लो आर एस, कैसे निकालोगे, आर एस कितना निकलेगा, तो ये कितना हो गया 24, 12 12 24। ओके, 40 1.92 किलो अपॉन आर, आर एस निकालना ही है, और करंट दे रखा है आपको 100 मिली 100/12। ओके, तो कितना आ जाएगा 16। ओके, सर 160 1.60 हाँ, सर 100 करंट हो गया 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर दे रखा है ना करंट, तो हाँ 100 मिली एम्पियर दे रखा। अच्छा करंट देगा, सॉरी सर सॉरी। ओके, तो 160 ओम आ रहा है क्या। यस सर। ओके, तो ये क्या आर एस मिनिमम है, दिस इज आर एस मिनिमम। ओके, आर एस एक मिनट, 160 हमारा रेजिस्टेंस, ये तो या तो ये होना चाहिए, ऐसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ यस, सर ये समझ नहीं आपने आरएस मिनिमम निकाला कैसे। आर एस मिनिमम कैसे। यस सर। भी भी अभी जो अभी इसमें हमको दे रखा है आई जेड मैक्स दे रखा है ना, आई जेड हाँ, मैक्स, तो मैं मान रहा हूँ कि इसमें और तो कोई ऑप्शन है नहीं है, इसमें आई जेड मैक्स फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ तो करंट जीरो जा रहा है, कुछ जा ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब ये जो करंट आ रहा है वो यहीं से आएगा, यही करंट। ओके ओके, मतलब ओपन सर्किट में ट्रीट किया हाँ, कि आपने जीरो करंट जा रहा है। हाँ जीरो करंट जा रहा है, Yes. तो जो ये करंट आ रहा है वही जाएगा। ठीक है, इसके अंदर, हाँ, और सर। इसमें मैक्स ही जा सकता है, यस सर। मैक्स ही जा रहा है, तो दिस इज आल्सो वर्स्ट केस कंडीशन। ओके, तो आपका आर एस क्या आ जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम हो तो फिर वो मैक्स निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यस सर। क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, now one more question, we can do it. This is a resistance is given. Okay, this is 10 volts. Okay, and you have to find R, and they have given you the power. This is your 5.6. okay, and power dissipated by this Zener diode is given 10 millivolts. okay, again ये ओपन है, ना करंट जा नहीं रहा है, तो निकालो आर कितना आएगा। दिस इज योर पी जेड। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अब तो नोटेशन लगाने से समझ में आ जाएगा कि ये पावर डिसिपेटेड बाय Zener डायोड। ओके, सो पी जेड दे रखा है आपको, वी जेड भी दे रखा है। वी जेड कितना है 5.6 वोल्ट्स। ओके, सो दैट मीन यू कैन फाइंड आई जेड। 1.78 मिली एम्पियर। आई जेड कितना आएगा, कितना रहा है 1.78 मिली एम्पियर। 1.78। सर हाँ, इस केस में हमारा डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा, ये हमें अगर ये देखना देख लो। ठीक है, इसको करने के लिए इसको ओपन कर दो, तो ये 10 का वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। रेजिस्टर है ना बीच में, लेकिन तो वो तो करंट जीरो हो जाएगा ना, ड्रॉप होगा ही ना। अगर ओपन कर दिया तो करंट आएगा ही नहीं कुछ भी, तो सारा वोल्टेज यहीं पे आ जाएगा। मतलब सर वो ऑफ होगा ना, क्योंकि वो भी इसको ओपन कर दिया आपने, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। दैट मींस ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ड्रॉप ही नहीं हो रहा वोल्टेज, करंट फ्लो नहीं हो रहा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, शॉर्ट सर्किट है। अब मतलब ये पॉइंट सेम ही तो है, तो यहाँ ये पॉइंट सेम ही है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही है, यहीं पे आएगा। तो डायोड मतलब ऑफ होगा तब सर।
ये जब ऑफ होगा, अभी ये ऑफ है तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा ना, ये ऑफ है तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे वो आपको यहाँ मिल जाएगा, अक्रॉस मिल जाएगा डायोड के, ठीक है। 2.47 किलो। तो आपका आर कितना रहा? 2.47 किलो। 2.47 किलो। ओके, ये आपका आंसर है, सही है। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं आ रहा? यस हाँ सर। ठीक है सर। हाँ बोलिए। मैं सर वो स्टेप्स देख रही थी कि क्या लिखा हुआ है। ओके, नाउ अभी हमने जो जब तक जीना डायोड किया है उसमें क्या माना हमने कि जीना डायोड एक बैटरी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। पर अगर जीना डायोड में रेजिस्टेंस भी हो, ओके, इफ जीना डायोड हैज आल्सो रेजिस्टेंस, ओके, सो दिस इज माय जीना डायोड, ओके। सो अगर इसमें रेजिस्टेंस भी है then we can replace it by a resistance, okay, plus a battery. Resistance is RZ and this is your VZ, okay। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे रखा है ना, अभी जो यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पे VL है, ओके, V लोड है इस केस में, तो इस लोड में, इस केस में VL कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस, तो VL आपका हो जाएगा इस केस में VZ प्लस जो भी करंट आ रहा है इसमें IZ RZ हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है अगर ये रेजिस्टेंस दे रखा है तो, ठीक है। तो आई एम गिविंग क्वेश्चन। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। So we have given one power supply, okay, and this power supply is grounded, and here plus they have given one RS, okay, and here we have one diode, okay, and here we have an RL, okay, across which we have VL. So they are given VZ. VZ is 10 volt, okay, and your R Z is 8.5 ohm, okay. So he asking what is the value of V load. So V load will be VZ plus IZ RZ, okay. So 10 plus, okay, IZ कैसे IZ कैसे निकालेंगे? IZ का वैल्यू दे रखा है, IZ का वैल्यू दे रखा है 20 मिली एम्पियर, okay. So IZ is 20 मिली एम्पियर, RZ is 8.5 ohm. कितना आ रहा है? 180 कहाँ से आएगा? 10 तो ये आ गया, ठीक है, 10 to power minus 3 है ना, -3 है, so 10.17 10.17 volts, okay. So you can see here, okay. So when this is when we are assuming there is no resistance, then VL is equal to 10 volts, okay. So when we are including resistance also, then it is only slightly changing. That means आपका जो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिन्हें डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसको एक्चुअली नेग्लिजिबल मानते हैं, okay. So you can see that this is almost same, okay, only slightly variation is there in delta V value, okay. Clear है ये? Yes sir. Okay. So now ये जेनर डायोड कितने टॉपिक्स का लेक्चर है सर? बस आज खत्म कर देंगे इसको, अभी चाहे तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, पर हम लोग एग्जाम थोड़ा सा एग्जाम से आगे चल रहे हैं ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन ना है वो भी हो जाए, जो कराए हैं वही कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम तो आएंगे नहीं ना, ठीक है। Yes, अब कराना तो कितना भी कराते हैं इसको। सो नाउ एक क्वेश्चन है, ए जीना डायोड हैज ए इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस of 20 ohm, okay, then RZ is given 20 ohm, okay.
if the voltage across the Zener diode, okay, that is VL given. If VL is given as 5.2 volts, okay, at वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड मतलब VZ आएगा ना सर? नहीं, आपकी डायोड पूरा है ना ये आपकी, आप जब सर्किट में रिप्लेस करते हो ना आप, ये आपका डायोड पूरा है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट टू बैटरी रेजिस्टेंस प्लस बैटरी, ओके प्लस, हाँ तो यहाँ VL आएगा वो। हाँ वो यहाँ पे VL हो जाएगा, ओके, एट IZ इक्वल टू 1 milliampere, okay, then determine the voltage, that is again VL dash at IZ equal to 10 milliampere. निकालो। कैसे निकालोगे इसको? 5.232 5.232 नहीं, कैसे आएगा भी? आपको इसमें VZ तो दे रखा है, आपको निकालना है पहले VZ निकाल लेंगे। VZ, हाँ VZ प्लस IZ RZ, ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको VZ मिल जाएगा, VL दे रखा 5.2 माइनस IZ RZ, ओके, 1 मिली एम्पियर इंटू RZ 20, कितना आ रहा है ये? 5.18 वोल्ट्स, ओके। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन VL डैश IZ दे रखा है आपको, VL डैश विल बी VZ, पता है आपको, IZ पता है इस समय, IZ डैश बोल दो, एंड RZ पता है आपको, कितना आएगा सर? 5.38 वोल्ट। 5.38 volts. Okay, this is your answer. Okay. Now, one more question, we'll do it. You are given. Okay. Okay. And you are given one RZ value. Okay. RZ means I'm directly replacing the battery and RZ. Okay. And you have given this VS and RS value is 250 ohm. And that here we have RL, okay, and here we have VL, okay, and VZ is given 100 volts, okay, RZ is given 25 ohm, okay, and IL is given 50 milliampere, and IZ is given 10 milliampere. Okay. So 2 questions asking. First case it's asking, okay, what is the VL and what is the VS? Okay, this is first case. And second case, पहले फर्स्ट केस करो, कितना आएगा निकालो। तो VS कैसे निकलेगा? VL कैसे निकलेगा? VL इक्वल टू VZ प्लस IZ RZ। So VL इक्वल टू VZ दे रखा है 100 प्लस IZ 25 दे रखा है, IZ कितना दे रखा है 10 मिली एम्पियर दे रखा है, ओके, तो कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 100.25 0.25 ओके 0.25 ओके 100.25 वोल्ट 100.25 ओके। VS कितना आएगा? VS कैसे निकालेंगे? हम लोग को IL दे, हमको VS चाहिए,
तो वीएस या तो किसका होगा? सर 115.5 सर आईएल और सर आईजेड 100.125 आएगा ना? हाँ, सर 115.25 सर। एक जना बोलो किसका बोल रहे हो? ये क्वेश्चन सही है? 100.2 सही है ये? यस सर। हाँ ठीक है। नाउ वीएस क्या आएगा? वीएस होगा आई, ऐसा सपोज आई आ रहा है, ओके, आई एस आर एस या आई आर एस, ओके, प्लस ये वोल्टेज विच इज इक्वल टू वीएल, ओके। सो आई कितना है? आई कितना है? सर आईएल आईएल प्लस आईजेड आई एल प्लस आई जेड, ओके, 60 into 250 प्लस वीएल, वीएल इज 02.5, ओके। तो वीएस कितना आ रहा है? सर 115.25 यस 115.25 वोल्ट, ओके। तो ये तो पहला केस है, ठीक है ना, कि हमने ये दिया और ये चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब ये वैल्यू याद रख लेना जो भी। सर ये हम्म, हमने कैसे लिखा? vs इज इक्वल टू आई बी वीएल क्या होता है? ये के, ये तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बार बार, ये तो यहीं पे के भी लिख दिया, ये प्लस ये वीएल है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इफ VL increases, okay, VL increases by 1%, okay, VL increases by 1% while IL remain constant at, पहले 50 मिली एम्पियर था, अभी 50 मिली एम्पियर है, ओके। VL increases by 1% while IL remain constant at 50 milli ampere, okay. In that case you calculate again VS, okay. In that case you calculate VS again. आपको पता ही है VS क्या है? आपका जो VS है वो क्या है? I S, ओके, RS प्लस VL। अब VL चेंज हो गया 1% से, 1% से। अगर पहले 100 था तो कितना हो जाएगा? पहले कितना आ रहा था? पहले कितना आ रहा था? 100.25 100.25, ओके। इसको कर दो 1 पॉइंट, तो नया वी डैश कितना हो जाएगा? 100.25 इंटू क्या करूं? इंटू 101/100 1.01, ओके। हाँ भाई सर। कितना आएगा बताओ? सर 101.25 101.25, ओके। अब क्या 1, ये VL चेंज हो गया आपका ना, तो VL ये VL डैश है, तो VL डैश क्या होता है? VL डैश चेंज हुआ, इसका मतलब और क्या चेंज हुआ? अगर VL डैश किसके बराबर है? VL बराबर है आपके VZ प्लस IZ RZ के, ठीक है। तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया? आपका IZ चेंज हो गया, ओके। तो VL डैश इक्वल टू IZ डैश। अब IZ डैश निकाल लो, कितना आ रहा है? IZ डैश कितना आ रहा है? सर आरजेड कितना था? मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं। RZ था 25 ओम। थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बोरिंग तो होता ही है पर एग्जाम में आता ही है। 0.05 0.05 एम्पियर एम्पियर ना, दैट मींस 50 मिली एम्पियर। हाँ, दिस इज 50 मिली एम्पियर, ओके। हाँ यस सर। तो अब निकाल लो VS कितना आएगा? IL तो आपको पता ही है, IL तो चेंज हुआ ही नहीं, IL कितना था? 50 मिली एम्पियर। अब ये भी 50 मिली एम्पियर हो गया, तो नया करंट कितना हो जाएगा? I कितना हो जाएगा? न्यू करंट कितना? 100 मिली एम्पियर। IZ डैश प्लस IL, ओके।
that is 50 plus 50, okay, 100 मिली एम्पियर। तो बस लिख दो, इसकी वैल्यू पता ही आपको, ये हो गया आई एस दैट इज 100 मिली एम्पियर, आर एस आपका 250 इंटू मिली एम्पियर है, एंड वी एल आपका अभी निकाला आपने 1.0.25, कितना आ रहा है? सर वीएल की वैल्यू तो लिख दिया ना। हाँ हाँ सर। कितना आ रहा है? इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 126.25। 126.25, ठीक है। ये आपका नया सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, करेंगे नहीं उसको होमवर्क दे देता है। सर हाँ तो मेरा आई जेड डैश तो 10.5 मिली एम्पियर आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 10.5 सर मेरा भी वही आ रहा है, ये कैसा वही है? आ रहा है। बी आपका वी एल डैश, आ रहा है सर। वी एल डैश क्या है? वी जेड प्लस आई आई डैश, सर 100.2625। तो ये कितना वी एल डैश कितना आपका? ये है 100.2625 सर, ये नहीं है सर। अरे यही तो था, 1% से इंक्रीज किया ना, 100.2625 आएगा सर। 100.25 था आपका पहले। सर इसका अगर 101 क्योंकि सर उसका परसेंट लेंगे तो 101 हो जाएगा सर, अगर 1% बढ़ता है तो सर। हाँ तो 1%, 1.01 तो 1% बढ़ गया मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई किया 1.01 हो गया ना। 1.01। हाँ 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 सर तो कितना आया? 1.25 था। 100.2625 हाँ दोनों का मल्टीप्लाई है सर 100.2625। अरे भाई इसको मैंने 101% कर दिया, तो 100% एक ही तो होता है, 1% से बढ़ गया मतलब क्या हो गया? इसको 100 मान के 1% बढ़ा दिया। सर जो मल्टीप्लाई है सर ये नहीं आ रहा, 100.2625 आ रहा सर। 100 पॉइंट, यस सर, क्योंकि सर पहले 10 मिली एम्पियर था, अब वो उससे 50 कैसे हो जाएगा सर? किसको बढ़ा? मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, जितना वीएल आया है उसका 1% बढ़ा दो। हाँ सर तो ये VL तो आ 101.25 आ रहा है। हाँ ये सही नहीं आ रहा है क्या? सही आ ये रहा तो है। सही आ रहा है सर। सही आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या बोल तुम्हारी क्या आलोक, तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही है? भी मेरा जो भी मेरा अगर मेरा 100 है, उसका 1% बढ़ा दो तो उसको 101 कर दो, ठीक है। अगर मेरा अगर अब मेरा 1 है तो 101/100, इतना मैथमेटिक्स तो पता है ना। अब ये है तो 100.25, तो ये कितना आएगा? 1.0 नहीं आएगा, 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0125 आएगा। पर आई की वैल्यू नहीं आ रही सर, मेरी। किसकी अब आई निकालना है, ठीक है। तो वीएल आपको दे रखा है ये। सर ये करने पे बहुत ज्यादा करंट हो जा रहा है सर, 50 मिली एम्पियर पहुंच जा रहा है। हाँ तो क्या हो आप गया? देख रहे हैं। तो और फिर जबकि उसको थोड़ा बहुत ही तो इंक्रीज करेगा सर करंट। जो आ रहा है क्वेश्चंस में आ रहा है तो न्यूमेरिकल है हमारा, उससे थोड़ी मतलब है, हमारे जो कैलकुलेशन में जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास भी सॉल्व किया वो यही कॉल सॉल्व किया हुआ 50 मिली एम्पीयर आ रहा है आई जेड डैश भी। अब यहाँ पे रख लो बस, आई जेड डैश कितना है आपको निकालना है, आई जेड डैश निकालना है, आर जेड आपका 25 ओम दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। चेक कर लेना, कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो है सही सही होगी, आंसर उठा के मैंने खुद भी करके दिखाया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लो, तुमको इसमें दिक्कत आ रही है तो और क्या करें। Now we have given V input, ओके। अभी इसको आगे नहीं करेंगे, इसको बंद करते हैं डायोड को, ओके। क्वेश्चंस बहुत हो गए। सो दिस इज ओके, 10 वोल्ट्स दे रखा है, ठीक है। एंड देन यू हैव 0.5 किलो ओम, ओके। दिस इज डायोड, ओके। एंड लोड दे रखा है 0, लोड पे करंट जा ही नहीं रहा है, ओके। सो वी जेड दे रखा है आपको, VZ is given 6.8 volts, okay. IZ is given 5 milliampere, okay. RZ is given 20 ohm, okay. IZ minimum is given
0.2 मिली एम्पियर। ओके, तो ये पूछ रहा है पहले तो निकालो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड? आई जेड दे रखा है, इसको निकालना है, आई जेड निकालना आपको। ठीक, आई जेड निकालो। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको आर जेड 20 ओम, आई जेड मिनिमम दे रखा है 0.2 मिली एम्पियर, और वी जेड दे रखा है आपको 6.8। ओके, तो ये पूछ रहा है निकालो पहले तो वी 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 नॉट निकालो, आउटपुट निकालो यहाँ पर। ओके, वी नॉट, that means now you have to replace this diode by a resistance plus a battery. Vz and resistance is 20 ohm. Okay, that means my V naught will be now कितना कितना होगा? सर जो ये current क्वेश्चन में डिफाइंड है कि वी नॉट प्लस ये हाफ से ही आ जाएगा। ये V naught निकालना है, क्वेश्चन में ये डिफाइन है, ये V naught निकालना है डायोड का क्रॉस। ओके ठीक है, ओके सर। तो कितना निकलेगा? हमको चाहिए इसमें करंट चाहिए पहले तो आई जेड जेड प्लस प्लस वी जेड चाहिए। 6.9 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6.8 है। अब आई जेड कैसे निकालेंगे? आई जेड कैसे निकालेंगे? ये तो आपको 6.8 दे रखा है, आई जेड कैसे निकलेगा? तो ये वोल्टेज दे रखा है, ये वोल्टेज दे रखा है, अभी मैंने इंक्रीज नहीं किया है, 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में बढ़ रहा है प्लस माइनस 1 वोल्ट, सर 10 वोल्ट दे रखा है, ये 10 है, ये 6.8 है। प्लस माइनस 6.8 डिवाइडेड बाय हाँ, 6.8 डिवाइड बाय 20 plus 0.5 किलो ओम प्लस 20 ओम। 20 ओम। 20 ओम किलो ओम में करोगे तो कितना आएगा? 0.02 किलो ओम। ओके, तो आई जेड कितना आएगा आपका? आई जेड कितना आएगा? सर 6.15 6.1 मेरा 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 6.67 मिली एम्पियर। 6 मेरा 6.35 आ रहा है। चेक करके देखो बी कितना आ जाएगा नीचे? बी आपका 10 माइनस 6.8। ओके, तो 3.2 करेक्ट, और नीचे कितना आएगा? 0.52 0.52 किलो ओम। कितना आना चाहिए? कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ अभी, चेक कर लो कितना आ रहा है। सही आ रहा है 6.153। 6.15 आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस वोल्टेज को प्लस माइनस 1 वोल्ट बढ़ा दूं, यानी कि मैं इसको एक बार 9 कर दूं और एक बार 10 कर दूं। ओके, सो नाउ आई एम चेंजिंग दिस वोल्टेज, ओके, दिस प्लस माइनस 1, ओके, and he asking then calculate find line regulation। ओके, लाइन रेगुलेशन क्या होता है? आपके आउटपुट में जो चेंज आ रहा है डेल्टा वी नॉट में, आपके वी प्लस में चेंज करने के कारण जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। ओके, तो ये निकालना है। एंड देन सेकंड, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इस पे एक लोड लगा देगा। ठीक है, तो लोड क्या करेगा? इसमें से 1 मिली एम्पियर करंट ले लेगा। अगर मैं इसमें लोड लगा दूं तो ये लोड उसमें से 1 मिली एम्पियर करंट निकाल लेगा। सो देन यू कैलकुलेट लोड। ये तो लाइन रेगुलेशन है, लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लोड करंट डेल्टा आई एल, जबकि इस केस में डेल्टा आई एल कितना दे रखा है? 1 मिली एम्पियर। ओके, पहले 0 था, अब क्या हो गया? मैंने इसमें से 1 एम्पियर निकाल दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको निकालने हैं। ठीक है, आंसर मैं आपको दे देता हूं, आपका होमवर्क है ये। ठीक है, तो डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी प्लस। डेल्टा वी प्लस का मतलब क्या है? प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 1 वोल्ट। हाँ, प्लस माइनस वोल्ट। ओके, इसका जो आंसर है वो दे रखा है प्लस माइनस, आंसर आ रहा है प्लस माइनस
38.5 38 पॉइंट प्लस माइनस ओके मिली वोल्ट्स भी आएगा तो कट जाएगा वोल्ट्स ओके एंड सर सेकंड डेल्टा वी प्लस मतलब 9 और 11 के डेल्टा वी मतलब प्लस माइनस वन ओके चेंज इन प्लस माइनस वन ओके एंड डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा आई का आंसर आ रहा है -20 मिली वोल्ट अपॉन मिली एम्पियर। तो ये ट्राई करना कैसे करते हैं मैं देखता हूँ। ठीक है ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे जीना डायोड खत्म हो गया। अभी हमको बस एक क्लास वो चाहिए डायोड खत्म करने के लिए ओके। अब करने के तो डायोड में और भी करते रह सकते हैं 3 4 5 क्लास और भी ले सकते हैं ठीक है। बट ऑलमोस्ट जो मेन कंसेप्ट है वो हमने कर ही लिए हैं। क्वेश्चन पे मैंने काफी आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दे दिए हैं और एक आध क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होंगे बचे होंगे। हाँ बोलो सर ये आईजेड वाला सर ये 10 - 6.8 अपॉन उसके बाद डिनोमिनेटर में कैसे किया सर एक बार बता देते। कौन सा क्वेश्चन? इसके पहले वाला ही सर इसी में इसके पहले वाला जो अभी वी हैव फाइंड आईजेड राइट। हाँ तो उसमें 10 - 6.8 अपॉन what was there 10 - 6 अच्छा करंट जो करंट निकाला था हमने अभी यस सर आईजेड निकाला था ये लिख लिया ना। यस सर ये लिख लिया। तो इसमें अभी हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था आईजेड ओके। तो पहले कितने क्वेश्चन कराया मैंने आपको नेटवर्क एनालिसिस में भी। अगर यहाँ पे बैटरी दे रखी है ओके यहाँ एक बैटरी दे रखी है और यहाँ एक बैटरी दे रखी है बीच में रेजिस्टेंस है तुम कैसे निकालते थे? दोनों का डिफरेंस निकाल करके तो निकालते थे। तो यहाँ पे अब 10 वोल्ट दे रखा है करंट नोड एनालिसिस में दिखाया था ना 10 और ये कितना है बीजेड 6.8 ओके डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये तो यहाँ तक करंट जा ही नहीं रहा है ओपन है। रेजिस्टेंस कितना है 0.5 किलो ओम प्लस 0.02 किलो ओम ओके। इसी से निकाला है जो भी आ रहा है 6.15 ओके। तो ये आपका होमवर्क है और कल हम इसको डायोड को खत्म कर देंगे। ओके सर हो गया। और किसी को कोई डाउट है? सर वो जो लोड रेगुलेशन लाइन रेगुलेशन का प्रॉब्लम है उसमें हम इनपुट फर्स्ट 11 वोल्ट लेके देन आउटपुट वो निकालो कैलकुलेट करेंगे एंड देन 9 वोल्ट लेकर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे उसका डिफरेंस करेंगे। भाई या तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो ओके डेल्टा प्लस दोनों आंसर सही में आएगा या फिर देख लो डेल्टा वी चेंज करने से किस में चेंज होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर मेरा यहाँ पे चेंज करना है तो किस में चेंज होगा? आई जेड में चेंज होगा डेल्टा आई जेड होगा ठीक है। तो इक्वेशन में कर लो डेल्टा वी प्लस इक्वल टू वी कितना आ रहा है वी इक्वल टू कितना आएगा वी जेड प्लस आई जेड आर जेड ओके। तो अब डेल्टा वी करना है मुझे डेल्टा वी करना है ठीक है। तो किसमें इसमें चेंज होगा नहीं जीरो हो जाएगा। तो ये क्या था डेल्टा आई जेड आर जेड हो जाएगा ठीक है। अब डेल्टा आई जेड निकाल लो। डेल्टा आई जेड कैसे निकालोगे? डेल्टा वी बाई आर जेड डेल्टा कैसे निकालोगे? पहले आपका एक आई जेड दे रखा है वी इनपुट ओके माइनस वी जेड अपॉन आपका ये कुछ दे रखा है जो भी आर इसको मैं मान लेता हूँ आर मान लेता हूँ इसको आर जेड मान लेता हूँ ना ये आर जेड दे रखा है ठीक है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका ये चेंज हो रहा है कितने वी इनपुट डैश हो रहा है इनपुट डैश ये वी जेड तो यही का यही है ये आर प्लस आर जेड भी यही का यही है ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा डेल्टा आई जेड कितना आएगा? डेल्टा आई जेड विल कम डेल्टा वी जो हम जो निकाल रहे हैं डेल्टा वी प्लस वी इनपुट क्या आएगा या तो 11 आएगा 9 आएगा ठीक है। अब मैं इनको माइनस करूंगा तो क्या आएगा आई जेड माइनस आई जेड तो डेल्टा वी प्लस आर जेड इससे आपका डेल्टा वी निकल जाएगा डेल्टा आई जेड निकल जाएगा। अब डेल्टा आई जेड निकल जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा वी प्लस आर जेड ओके डेल्टा वी। तो निकाल लीजिए मैंने तब क्या होमवर्क क्या है। तो अभी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी प्लस ओके ये क्या जाएगा आर जेड
प्लस आर प्लस जो भी आर जेड है, आर प्लस आर जेड, याद आएगा? कितना आ रहा निकाल के बताओ। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, थैंक यू सर। और लोड वाला निकाल के देखना। सर Yes, sir. 0.96 होगा। नहीं, क्यों? डेल्टा वी तो प्लस माइनस 1 है, ठीक है? तो आंसर मैंने दे दिया था ना आपको अभी। आर जेड कितना है आपका? ठीक है सर। आर जेड कितना है? आर जेड आपका 20 ओम है ना, 20 यानी कि 0.02, और ये 0.052 किलो ओम निकालो कितना आ रहा है, कितना आएगा? ओ सर 0.038। 0.03 आगे यस सर। 0.03 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको मिलीवाट में कर लेंगे, ठीक है? चलो करके बताना मुझे कल। ठीक है। मेरे पास